رات گئے عمران خان کی خوفناک تقریر، وہ تقریر جس میں عمران خان نے تمام تر کشتیاں جلا کر آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، اس تقریر کا پہلا نتیجہ آ چکا ہے۔ ایک جانب تو اس وقت عمران خان پر آرمی ایکٹ کے ذریعے مقدمہ چلانے کی بازگشت چل پڑی ہے۔ یہ آرمی ایکٹ کیا ہے اور اس میں کس طرح سے عمران خان کو پھنسایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ کھیل اب انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت بھی ناساز ہے اور انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے، اور سروسز اسپتال میں کیا ڈرامہ رچایا گیا، ڈی آئی جی آپریشن نے پہنچ کر کیمرے جو ہیں ان کے اوپر کپڑا کیوں ڈلوایا، اور اس وقت ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ کافی زیادہ ڈیولپمنٹ سے ایک ایک کر کے ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے، حالات کسی بھی صورت ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو دیا گیا ریلیف ختم ہونے میں تقریباً 24 گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں، اور اس سب کے اندر اب مزید ایکشن ہوگا، کیونکہ آپ کو جو رویہ ہوتا ہے، جو اقدامات ہوتے ہیں، ان سے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے پولیٹیکل ہیپننگ سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران ریاض خان ہمارے بھائی، ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہر ممکن حد تک آواز اٹھا رہے ہیں، اور کل عمران ریاض صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ہماری بہن، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور سو موٹو ایکشن لینے کا کہا ہے، آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور کیس ہے انلیگل اور آربیٹریری ڈیٹینشن آف مسٹر محمد عمران ریاض خان۔ اب عدل جو ہے، کیا وہ اس وقت حرکت میں آتا ہے؟ انصاف کا ترازو جو ہے، کیا رات کو عدالتیں لگتی ہیں؟ اور سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کسی کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ اتنا آسان ہے تو یہ نہیں ہے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہوگی کہ جتنا زیادہ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ ہمارے بھائی عمران ریاض کے لیے آواز اٹھانے میں شیئر، لائک، کامنٹ، آپ کی سوشل میڈیا پہ آواز ہی ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اب ذرا کچھ خبروں پہ آ جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا کہا ایم پی او کے تحت، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہیں سروسز اسپتال سے گرفتار کیا گیا، اور پولیس کو وہ 3 مقدمات میں مطلوب ہیں، اور دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے اس مقدمے میں شامل ہیں۔ اور تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی صدر یاسمین راشد صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے، جیل حکام کی کسٹڈی میں سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، وہ کینسر جیسے موذی مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ ناظرین کرام، رات گئے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عارف جو ہیں وہ مبینہ طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو سروسز اسپتال سے پولیس لائن اسپتال جو ہے وہ منتقل کرنے لگے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز ہے، لیکن اس وقت انا ہے کسی کی ضد ہے کہ انہیں فوری گرفتار کرنا ہے۔ اور اطلاعات جو مبینہ طور پہ ذرائع نے ہمیں بتایا وہ یہ بھی ہے کہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی رات گئے، اور وارڈ کے اندر تمام کیمروں پر کپڑا بھی ڈالا گیا، یہ کہنا ہے وہاں پر موجود عینی شاہدین کا۔ اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایک جانب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، اور جی ایچ کیو کا جو گیٹ ہے وہ توڑنے اور توڑ پھوڑ کا جو کیس ہے، ایک جانب وہ تھا، تو دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کا گیٹ توڑنے اور توڑ پھوڑ کیس میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس ذرائع کے مطابق ملزم ادریس کی شناخت سوشل میڈیا ویڈیو کے ذریعے کی گئی ہے۔ جی ایچ کیو گیٹ توڑنے اور توڑ پھوڑ پر پولیس نے خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی، جس کی سربراہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اصفر کر رہی ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ مقدمے میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت سمیت 15 افراد نامزد ہیں، اور 72 گھنٹے جو ہے اس کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر لسٹ آف پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ انوالوڈ ان پروٹیسٹ
9 मई 2023 ऑनवर्ड्स जो प्रोटेस्ट हुए, वो एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस लिस्ट के अंदर हैं, उनके साबिक वजीर जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर हैं, और इसमें एक बड़ी तफसीली किस्म की रिपोर्ट बनाई गई है। कैंट जो है उसकी हदूद से 57, सिटी की हदूद से 60, सिविल लाइन से 66, इकबाल टाउन से 148, मॉडल टाउन से 30, सदर से 138 और टोटल 499 अफराद की फहरिस्त जारी की गई है। और अपेरेंटली सबसे पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, और इस सब के अंदर ये चीजें जो है ये बड़ी अहम है। और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि एक शख्स जो है जिसे GHQ हमले में गिरफ्तार किया गया है, वो जिलाई इदारे का मुलाजिम निकला है, और इस सब के अंदर ये चीजें कही जा रही हैं कि क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है, और मुलजिम जो है मजीद मुलजिमान जो है उनकी गिरफ्तारी भी इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। अब ये सारे के सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर, ये सारे की सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन अब माहौल बन चुका है। मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, और इनकी हर बंदे की ना एक अच्छी चीज होती है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, इनकी अच्छी चीज ये है, इनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है राना सनाउल्लाह की जात का, कि ये अपने मंसूबे बहुत पहले बता बैठते हैं। 9 मई 2023 को राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, और इन्होंने कहा था कि इमरान खान के पास अपने इल्जामात का कोई सबूत नहीं, उसके खिलाफ डिफेंस पाकिस्तान रूल आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इन्होंने कहा कि वजीराबाद वाकई की, और ये अभी इन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था जब इमरान खान साहब ने एक मेजर जनरल के ऊपर और दीगर जो अपने कत्ल के मंसूबे के हवाले से इल्जाम लगाए थे। वजीराबाद वाकई की तहकीकात के दौरान कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि हमलावर के साथ कोई और मुलव्विस था। फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने वाला उनका अपना कारकुन था, और उसे खुद मालूम है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सियासी फायदा उठाना चाहता है। पुलिस के पास बिला वजह FIR दर्ज ना करने का इख्तियार है। हुकूमत पर एतबार नहीं तो चीफ जस्टिस से कत्ल की इंक्वायरी पर रजामंद हो जाओ। उस वक्त इन्होंने ये बात कही, और इन्होंने कहा कि हम सरनिगू नहीं होंगे, और इमरान खान जो है उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की दोबारा से खबरें चलना शुरू हो गई हैं, और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी जो इस वक्त मामलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट जो है उसकी दफा 59 यानी उसका सेक्शन 59 और सेक्शन 60 जो है 59 और 60 उसके तहत मुकदमा दर्ज करने की वैसे तो इस वक्त बाज़गश्त चल पड़ी हुई है, यानी ये चीजें आ चुकी हैं। लेकिन मेरे पास जो इस वक्त खबर है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। और अब जारी बात है खुफिया मुकदमात भी होते हैं, बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो खबर ओरिजिनल खबर है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत अभी तक जो इत्तलात हैं जो हमने पता करने की कोशिश की है, मुकदमा दर्ज होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अभी तक ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ हुकूमती हल्के जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मामला ज़ेरे गौर है। अब आर्मी एक्ट जो है नाज़रीन इकराम, इसका सेक्शन 59 क्या है और इसका सेक्शन 60 क्या है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 59 है सिविल ऑफेंसेस। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु एट एनी प्लेस और इन बियॉन्ड पाकिस्तान commits any civil offence shall be deemed to be guilty of an offence against this act, and if charged therewith under this section shall be liable to dealt with under this act। यानी कहा गया है कि अगर कोई आदमी कुछ ऐसे इकदामात करता है, और जारी बात है ये आर्मी के रिलेटेड है, और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि इसमें जो सेक्शन 60 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें पनिशमेंट्स में भी inflicted in respect of offences committed by persons subject to this act and convicted by court martials according to scale following, that is to stage। यानी इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, नंबर 1 स्टोनिंग टू डेथ यानी कि संसार करना, नंबर 2 इसी के अंदर ए का जो है वो है कि डेथ जो है मौत जो है वो भी, और इसके साथ ही साथ उम्र कैद जो है यानी कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है उसके हवाले से भी बहुत से कंसर्न्स जो हैं वो इस वक्त रेज हो रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, इस वक्त मामलात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और आर्मी चीफ का भी कल आपको पता है एक अहम तरीन बयान आया SPR की तरफ से। खान साहब की जो तकरीर थी, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस स्पीचेस बाय इमरान खान साहब, जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे और अपने गुस्से को
कंट्रोल करने की इमरान खान साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं। उन्होंने बेगैरत जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये गैरत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये औरतों के ऊपर, घरों के ऊपर टीमें तश्कील दी जाती हैं और ये सब कुछ किया जाता है। इसके साथ ही साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ISPR जो है उसे बहुत आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है ISPR को आड़े हाथों लेने का मतलब पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके मौक़िफ़ को, क्योंकि DG ISPR तो सिर्फ एक ऑफिसर है। ऑब्वियसली उनकी कोई प्रेस रिलीज, उनकी कोई स्टेटमेंट जो है वो चीफ या फिर इदारा जो है उसकी पॉलिसी से डेविएट नहीं कर सकती, ये ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि इट इज जस्ट द DG ISPR एक्टिंग ऑन हिज ओन। इट इज द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट इज द पॉलिसी ऑफ द मिलिट्री एंड द आर्म्ड फोर्सेस जिन्हें इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली इस वक्त खलीज जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है और बहुत कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का मंसूबा भी है। गवर्नमेंट के इक़दाम से आप समझ जाएं कि किसी भी सूरत ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मामलात को ठीक नहीं करना चाह रहे। ये मामलात जो हैं उन्हें अफाम तफहीम से हल नहीं करना चाह रही। और जो एक वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इन लेस देन 24 आवर्स, हम ये वाला तमाशा भी देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज तौहीन ये हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जुडिशल ऑर्डर बरकरार रहेगा चाहे उस पर अमल हो या ना हो। 14 मई को इंतखाबात का, वो भी नहीं हुए, आज 14 मई है। कल इलेक्शन कमीशन की नजर सानी पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो समाअत करेंगे और कल और भी बहुत कुछ होगा। मरीम नवाज पहुंच चुकी हैं, ये बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी के हवाले से इजलास बुलाया, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब तो गए। इस्लामाबाद पुलिस जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमत के हाथों यरगमाल हो चुकी है, उसका कोई नुमाइंदा नहीं गया, जिस पर जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया। मौलाना फजल रहमान के अंसारुल इस्लाम जो कि डंडा बरदार हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाना शुरू हो चुके हुए हैं कि हम जा रहे हैं, डंडे तैयार किए जा रहे हैं। धरना जो होता है उसके लिए डंडे तैयार नहीं किए जाते। और इमरान खान के बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि 25 मई को भी बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन हो सकती थी पिछले साल, लेकिन नहीं हुई क्योंकि इमरान खान मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा जो मिस एडवेंचर गवर्नमेंट करने जा रही थी उस रास्ते को अवॉइड किया, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके। इस मरतबा भी लीडरशिप का फुकदान था। इमरान खान साहब मौके पे मौजूद नहीं थे और ये आपको भी पता है, और ये इमरान खान पर तनकीद करने वालों को भी 1000% पता है कि इफ़ इमरान खान साहब वॉज नॉट इन प्रिजन और इमरान खान साहब और ये सब कुछ हो रहा होता, खान साहब वुड हैव स्टॉप्ड इट इमीडिएटली। इसकी नौबत भी नहीं आनी थी। यही होता है जब डायरेक्शन लेस क्राउड होता है। जाहिर बात है इसमें एक सवाल ये है, बिल्कुल ये सवाल रहेगा कि बाकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो कहाँ पर थी, लेकिन उन्हें अपने लाले पड़े हुए थे, उनकी अपनी पकड़ दकड़ चल रही थी, वो अपने केसेस में फंसे हुए थे, उन्हें वहाँ पर फंसाया हुआ था और गिरफ्तार करके ये साबित भी कर दिया कि उनके जो कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त थे, वो बिल्कुल ठीक थे। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत से सवालात खड़े करती हैं, बहुत से क्वेश्चंस रेज करती हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर अल्लाह ना करे कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। उसमें फिर ये भी कहा जा रहा है, अब इसमें लीगल एक्सपर्ट्स बताएंगे, बाकी चीज़ें मैं पता करके आपके सामने रख भी दूंगा कि उसमें फिर उस चीज़ को सिविल कोर्ट्स के अंदर उस तरह से चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और लाहौर के अंदर मुकदमात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नैब के बाद 9 मई के बाद भी 11 मुकदमात कायम किए गए हैं। ये सारे मुकदमात तोड़ फोड़ जलाओ घिराव के हैं, जिनमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी नामजद किया गया है। मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त ऑन गोइंग एक कॉन्फ्लिक्ट है उसे मजीद फ्यूल अप करेगा। इस चीज़ को अवॉइड करके सबको, इवन इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक एक स्टेप पीछे होना होगा। अगर नहीं होते तो फिर वही बात है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग तजिया कर रहे हैं कि अगर खुल्लम खुल्ला इसी तरह से फुल फ्लेज वॉर चली तो वन विल सर्वाइव। और अवाम किसके साथ है ये वैसे ही अवाम वाजे कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर खड़ी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।